کسی قتل کی واردات میں جب مقتول اجنبی ہو اور علاقے کے لوگ اس کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتے ہوں تو قاتل تک رسائی کے لیے تفتیش کی گاڑی کو تقریباً بریک ہی لگ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں عموماً کھرا نکالا جاتا ہے تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ قاتل یا مقتول کن راہوں سے گزر کر جائے وقوع تک پہنچا ہوگا۔ کھوج کا یہ کام اکثر بڑے حوصلہ افزا نتائج لاتا ہے، لہٰذا نامعلوم حسین و جمیل مقتول کا کھوج لگانے کے لیے میں نے بھی یہی تفتیشی طریقہ اختیار کیا۔ میں نے دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر کھوجی اللہ رکھا کو تھانے بلا لیا۔ اس دوران میں میرا ذہن پراسرار دستک کو بھی ایک لمحے کے لیے نہیں بھولا تھا جو رات کو میرے کوارٹر کے بیرونی دروازے پر سنائی دی تھی۔ مذکورہ دستک کا نامعلوم عورت کے بہیمانہ قاتل سے کوئی تعلق تھا یا نہیں، لیکن یہ ضرور تھا کہ اس دستک نے گزشتہ رات ہی مجھے بے چین کر دیا تھا۔ میں اسی پریشانی کو ذہن میں لے کر سویا تھا اور اسی الجھن کے ساتھ بیدار ہوا تھا، اور پھر جب میں تھانے میں آ کر بیٹھا تو یہ واقعہ سامنے آ گیا۔ کوئی آواز میرے اندر چپکے چپکے سے یہ سرگوشی کر رہی تھی کہ رات والی دستک کا اس اجنبی دلکش عورت کے قتل کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق جڑا ہوا تھا۔ کوئی بات واضح تھی اور نہ ہی میرے ہاتھ میں کوئی ثبوت تھا، لہٰذا قبل از وقت میں کوئی فتویٰ صادر کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ کانسٹیبل اللہ رکھا کو لے کر تھانے پہنچا تو میں نے فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا۔ کھوجی بابا اللہ رکھا کی عمر 65 کے قریب تھی۔ وہ درمیانے قد کا مالک ایک مستعد بوڑھا تھا۔ اس نے چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھ چھوڑی تھی جو اس کے چہرے پر بڑی بھلی نظر آتی تھی۔ اس کی داڑھی اور سر کے بال مکمل سفید ہو چکے تھے۔ اللہ رکھا نے پاپلین کا کرتا اور تہبند زیب تن کر رکھا تھا، اور اپنے سینے کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے اس نے اوپر نیچے 2 اونی سویٹر پہن رکھے تھے، یعنی ایک کرتے کے اوپر اور دوسرا کرتے کے نیچے۔ میں نے نہایت مختصر اور جامع الفاظ میں اللہ رکھا کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میری خاموش ہونے پر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، 100 باتوں کی ایک بات، قاتل کا کھرا نکالنا ہے نا جناب؟ بالکل اللہ رکھا، میں نے اسی مقصد کے تمہیں تھانے بلایا ہے۔ کل ملا کر معاملہ یہ ہے کہ ہم جائے وقوع پر چلتے ہیں، وہ پورا لہجے میں بولا، پھر دیکھتے ہیں حالات اور قدرت کیا رنگ دکھاتے ہیں۔ اللہ رکھا، تمہیں یہ تو احساس ہو گیا ہوگا کہ کتنا حساس معاملہ ہے۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے کھوجی بابا کی طرف دیکھا۔ آپ فکر ہی نہ کریں جناب، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور اس سلسلے میں جو بھی حقائق سامنے آئے انہیں راز میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ معاملہ صرف ہم دونوں کے بیچ میں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تحقیق کے نتائج سے قاتل فائدہ اٹھا کر معاملات کو بگاڑ دے یا حالات و واقعات کو الجھا کر رکھ دے۔ میرا سینہ بہت وسیع اور گہرا ہے ملک صاحب، اپنے سینے کو تھپکتے ہوئے بولا، اس کنویں میں بڑے بڑے راز دفن ہیں جناب۔ میں مطمئن ہو کر اٹھا اور اللہ رکھا کو اپنے ساتھ لے کر جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے ملک صاحب، وہ کام کا آغاز کرتے ہوئے بولا، آپ نے خدمت کا موقع دے کر مجھ پر بڑی نوازش کی ہے جناب، ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا ان بوڑھوں ہڈیوں کو بیکار سے پڑے پڑے زنگ ہی لگ جائے گا۔ مخبر اور کھوجی ہر دور میں پولیس ڈپارٹمنٹ کی ضرورت نہیں، ہم لوگ گاہے بگاہے ان سے کام لیتے رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑے کام کے ہوتے ہیں۔ جب کبھی تفتیش کی گاڑی کسی بندگلی میں جب پھنستی تو یہی لوگ اپنے تجربے مہارت کا دھکا لگا کر اسے سڑک پر لاتے ہیں۔ ان کی اہمیت اور افادیت سے کسی بھی صورت انکار ممکن نہیں۔ اللہ رکھا 10 منٹ کے اندر جائے وہ کورس کی گرد و نواح کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ کبھی کبھی جھک کر زمین کو دیکھ رہا تھا، یہ اس کا فن تھا، لہٰذا میں خاموش تماشے بنائے اس کے حرکات و سکنات کا نوٹس لیتا رہا۔ کوئی 15 منٹ کے بعد وہ میرے پاس آئے بڑے حتمی لہجے میں بولا، ملک صاحب، چونکہ صبح بہت سارے لوگ جائے وقوع پر جمع ہو گئے تھے، لہٰذا یہاں درجنوں قدموں کے چھاپے آپس میں گڑبڑ ہو چکے ہیں، لیکن میں نے پھر بھی ایک پتے کی بات چلا لی ہے۔ کیسی بات؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیا اللہ رکھا؟ انسان کے متعدد قدموں کے کھروے کے علاوہ مجھے ایک جانور کا کھرا بھی ملا ہے ملک صاحب، وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اللہ رکھا کی بات سن کر میرا دھیان لامحالہ دینو کمار کی طرف چلا گیا۔ آج صبح اسی نے نامعلوم عورت کی لاش دریافت کی تھی اور اس کے ساتھ 2 جانور بھی تھے۔ میں نے اسی تزازر میں اللہ رکھا سے استفسار کیا، گدھے کا یا کتے کا کھرا؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی، ان دونوں میں سے کسی کا نہیں۔ پھر میری حیرت الجھن میں بدل گئی۔ وہ بڑے پراعتماد لہجے میں بولا، میں گھوڑے کے کھرے کی بات کر رہا ہوں ملک صاحب۔ گھوڑے کا کھرا؟ میں سوالے نظر سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جی ہاں، اس نے بڑے وثوق سے سر کو اس بات جنبش دے بتایا، کوئی گھڑ سوار یہاں تک آیا تھا اور یہاں سے واپس بھی گیا تھا۔ میں بے ساختہ پوچھ بیٹھا، وہ کہاں سے آیا تھا اور واپس کدھر چلا گیا؟ اس کا پتہ تو میں بھی چلا لیتا ہوں جناب، کیونکہ میں نے اس گھوڑے کا کھرا اچھی طرح پکڑ لیا ہے۔ وہ متذبذب انداز میں بولا، ہاں، جب گھوڑے کا کھرا پکڑا گیا ہے تو پھر گھڑ سوار بھی پکڑا ہی جائے گا۔ میں نے اللہ رکھے کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، لیکن تمہارے چہرے پر الجھن کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ کوئی پریشانی نہیں ہے ملک صاحب، وہ تسلی بھرے انداز میں بولا۔ کل ملا کر یہ سمجھ لیں کہ گھوڑے کا کھرا مجھے ایک نئے زاویے پر سوچنے کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ کون سا نیا انداز اللہ رکھا؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔
100 बातों की एक बात मलक साहिब, वो सोच में डूबे हुए लहजे में बोला। मेरा तजर्बा ये बताता है कि जब घोड़ा इस तरफ आया तो इस पर 2 अफराद सवार थे, और जब वो यहाँ से वापस गया तो इसकी पीठ पर सिर्फ एक ही सवार था। कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात, हालात और कुदरत क्या रंग दिखाते हैं। जैसे जुमले अल्लाह रखा अपनी गुफ्तगू में आम इस्तेमाल करता था, जो किस हद तक इसके तकिया कलाम की हैसियत रखते थे, लेकिन इन लम्हात में ऐसे जुमलों पर ध्यान देने का टाइम नहीं था मेरे पास। इसने जो ताज़ा तरीन इंकिशाफ किया था वो मेरे ज़हन को जोड़ने के लिए काफ़ी था, लिहाजा मैंने सरसराते हुए लहजे में पूछा, ये बात तुम इतने वसूख से कैसे कह रहे हो अल्लाह रखा? घोड़े के पाँव के मखसूस दबाव की बिना पर जनाब, वो गहरी संजीदगी से बोला। इस जानिब आता हुआ खबर बताता है कि घोड़े पर 1 से ज़्यादा अफराद सवार थे, और यहाँ से वापस जाता हुआ खुरा एक सवार की निशानदेही कर रहा है। जाते हुए खुरे की बनिस्बत आने वाला खुरा डबल दबाव की जानिब इशारा करता है। ठीक है अल्लाह रखा, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। अब तुम जल्दी से पता चलाने की कोशिश करो कि वो डबल घुड़सवार घोड़ा कहाँ से आया था और यहाँ से सिंगल घुड़सवार घोड़ा बनकर कहाँ चला गया है। अभी पता चलाता हूँ सरकार, वो पुरज़म अंदाज में बोला। आगे हालात कुदरत क्या रंग दिखाते हैं ये भी सामने आ ही जाएगा। अपनी बात खत्म करते ही वो बड़े माहिराना अंदाज में काम में जुट गया। मजीद 1 घंटे की तहकीक और जुस्तजू के बाद खोजी बाबा ने जो सनसनीखेज इंकिशाफात किए वो सुनने और बताने से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं इस लोकेशन की वजाहत करना चाहूँगा जहाँ की छान पटक के बाद अल्लाह रखा ने अपना तहकीकी बयान जारी किया। आगे बढ़ने से कबल एक बात की वजाहत कर दूं कि अब खोजी का कहीं जिक्र नहीं आएगा, इसका काम खत्म हो गया था। इस केस में मुझे जिस हद तक इसकी तकनीकी मदद की जरूरत थी उसने मुझे फराहम कर दी थी। इस मामले की उलझी हुई डोर का एक सिरा अल्लाह रखा के तवस्सुल से मेरे हाथ लग गया था। जिग-जैग करते हुए दूसरे सिरे तक रसाई हासिल करना अब मेरा काम था, और मुझे यकीन था कि मैं अपना काम बतरीके आसन इंजाम दे लूंगा। सिंगल घुड़सवार और डबल सवार का जिक्र सुनते ही मेरे ज़हन में तेज रोशनी का झमाका सा हुआ और पलक झपकते में एक हतमी फैसले पर पहुंच गया था। इस झमाके की ज़िया पाशियों से आपको भी मुनव्वर करता हूँ। मेरे ख्याल में कातिल इस नामालूम औरत की लाश को घोड़े की पीठ पर लादकर जैब कुआं तक पहुंचा था, फिर इस लाश को खादिम हुसैन के खेतों में फेंक कर वापस चला गया था। आप अगर मेरे अल्फाज पर गौर करें तो सिंगल दबाव वाला खुरा और डबल दबाव वाला खुरा बासानी आपकी समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको लोकेशन के बारे में बता रहा था। जैसा कि इस कहानी की इब्तिदा में मैं इस बात का जिक्र किया जा चुका है कि इन दिनों मैं फिरोजाबाद नामी एक छोटे से कस्बे के एक छोटे से थाने में तैनात था। मेरा थाना एक कच्ची सड़क के किनारे वाक़ था जो शुमालन चनूबर रवा दवा रहती थी। फिरोजाबाद लगभग 1500 घरों की एक आबादी थी जो लोकेशन के एतबार से मेरे थाने के अक़ब में मशरिक की तरफ आबाद थी। थाने और गांव के दरमियान वो मुश्किल आधे मील का फासला रहा होगा जो सब्ज़ो शादाब खेतों के कब्जे में था। गांव के चौधरी इलाही बख्श की हवेली भी गांव के एक किनारे पर वाक़ थी। थाने से लगभग 1 फरलांग के फासले पर जुनूब में एक दरिया बहता है। यह दरिया मशरिक से मगरिब की समत रवादवा था और इसी दरिया के किनारे से दीनू कुमार मट्टी लेने के लिए आया करता था। आसानी के लिए समझ ले कि फिरोजाबाद गांव, मेरा थाना, दरिया और कच्ची सड़क के बीच एक सिरे से दूसरे सिरे तक खेतों का सिलसिला फैला हुआ था, और इन्हीं खेतों में दरिया के किनारे के साथ एक डेरा भी बना हुआ था जो कि चौधरी इलाही बख्श की मलकियत था। मज़कूरा डेरे पर चौधरी का मुलाजिम खास रहीम दिन उर्फ रहमू रहता था, जो चौधरी के छोटे मोटे कामों के अलावा काश्तकारी की अमूर की निगरानी भी करता था। और सबसे दिलचस्प और चौंका देने वाली बात यह थी कि खोजी बाबा अल्लाह रखा ने खुरे की मदद से जिस घोड़े का सुराग लगाया था वो इसी किनारे से चलकर जायब कुआं तक पहुंचा था और फिर जायब कुआं से वापस इसी डेरे पर आया था। इस इंकिशाफ ने मेरे रगोपे में सनसनाहट भर दी थी। गरूब आफताब से चंद दिन पहले की बात है। ऐसे ही मतलूब हुसैन ड्यूटी पर आया तो मैंने फौरन इसे अपने कमरे में बुला लिया। वो इसी गांव का रहने वाला था और मैं उम्मीद कर रहा था कि जैसे ही इसे खादिम हुसैन के खेतों से इस औरत की लाश मिलने की खबर होगी वो दौड़ा दौड़ा मेरे पास चला आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो हस्बे मामूल अपने मुकर्ररा वक्त पर ही थाने पहुंचा था और इसकी इस हद पर मुझे हैरत भी हुई जब भी मैंने इसे फौरन अपने कमरे में बुला लिया था। अब तो ये हो नहीं सकता था कि खूबसूरत नामालूम औरत की दर्दनाक मौत वाला किस्सा इसके घर की तहलील से ना गुजरा हो। मलक साहिब, यह आज कैसा वाक़या पेश आ गया है? मेरे कुछ पूछने से पहले इसने सवाल किया। तुम तो ऐसे मुझसे पूछे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए शिकवे भरे अंदाज में कहा। यकीन करें, मुझे भी थोड़ी देर पहले इस बात का इल्म हुआ है। वो एकदम बेहद संजीदा नजर आने लगा। मैंने पूछा, मतलूब हुसैन, कि तुमने आज का दिन फिरोजाबाद से कहीं बाहर गुजारा है? नहीं जनाब, मैं तो दूरी था अपने घर में। कमाल है, फिर भी तुम्हें इतने बड़े मामले की खबर नहीं हुई। जनाब, मैं गहरी नींद में सोया हुआ था। तुम्हारे घर वालों में से किसी ने जगाने की कोशिश नहीं की? घर में कोई होता तो ये कोशिश करता ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने आंखें सुकड़कर इसे घूरा। वो वजाहत करते हुए बोला, मलक साहिब, मेरी घरवाली बच्चों के साथ ससुराल यानी अपने मैके गई हुई है। नींद काफ़ी जमा हो चुकी थी। मैं थाने से जाने के बाद ऐसा पढ़कर सोया कि
कोई आध घंटा पहले ही मेरी आंख खुली है। वो सांस हमवार करने के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, मुझे जैसे ही पता चला कि सुबह खादिम हुसैन के खेतों में से किसी नामालूम औरत की लाश मिली है, मैं आपकी तरफ आ गया हूँ। यह है कुल कहानी जनाब। मैंने ना तो दोपहर का खाना खाया है और ना ही अभी घर से कुछ खा के निकला हूँ। अब तुम कल सुबह एक साथ ही नाश्ता करना, मैंने जुमैनी अंदाज में कहा। क्यों जी? वो ताज्जुब खेज नजर से मुझे देखने लगा। क्योंकि मैं अभी तुम्हें एक ऐसे मिशन पर रवाना करने वाला हूँ। कैसा मिशन मलिक साहिब? इसकी हैरत में परेशानी भी शामिल हो गई। इस मिशन को तुम उस वक्त तक नहीं समझ सकोगे जब तक मैं तुम्हें सुबह वाले वाक़े की तफसीलात से आगाह न कर दूं। मैंने गंभीर लहजे में कहा। सुनोगे तो भूख प्यास और नींद सब कुछ उड़न छू हो जाएगा। वो बड़े सनसनी खेज नजर से मुझे देखते हुए मतन गोश हो गया। मैंने आइंदा 5 मिनट में से ऐसा ही मतलूब हुसैन को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाही फराहम की, फिर कहा, तुम्हें अभी और इसी वक्त डेरे की जानिब रवाना होना है। मैं आधे घंटे के अंदर चौधरी के मुलाजिम खास रहमदीन और रहमू को अपने सामने देखना चाहता हूँ। मैंने तहकमाना अंदाज में कहा, तुम अपने साथ एक आध कांस्टेबल को भी ले जाओ ताकि गिरफ्तारी के अमल में किसी दुश्वारी का सामना ना हो। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके इसकी आंखों में झांका, फिर इन अल्फाज में इजाफा किया, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जी मलक साहिब, बड़ी चंगी तरह समझ रहा हूँ। वो उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, आधा घंटा तो आपने बहुत बताया है। मैं इंशाल्लाह इससे पहले ही आपको खुशखबरी सुनाऊंगा और जब तुम कामयाब लौटोगे तो मैं तुम्हें एक खुशखबरी दूंगा। मैंने मायने खेज नजर से देखते हुए कहा। वो कोई सवाल किए बगैर बड़ी अतातमंदी से उठा और दूसरे मेरे कमरे से निकल गया। ठीक 5 मिनट के बाद वो कांस्टेबल इमरान को अपने साथ देकर चौधरी इलाही बख्श के डेरे की जानिब रवाना हो चुका था। मैं जानता था कि मैंने मतलूब हुसैन को खाली पेट रहमू की गिरफ्तारी के लिए भेज दिया था। ये एक तरह से ज्यादती वाली बात नजर आती थी, लेकिन मुझे मालूम था कि अगर 15-20 मिनट मजीद इसके पेट में खाना न पहुंचे तो कोई क़यामत बर्पा नहीं हो जाएगी। वो इस मिशन से वापसी पर भी पेट पूजा कर सकता था। और फिर मैंने इसके लिए कुछ और सोच दिया था। अगर मैंने वापसी पर इसे खुशखबरी देने की बात की थी तो कुछ गलत नहीं था। अपने अल्फाज को अमली जामा पहनाने के लिए मैंने कांस्टेबल आसिफ को अपने पास बुलाया और चंद हदायत देकर रवाना कर दिया। हमारे थाने के साथ एक तांगा स्टैंड था जहाँ 3-4 दुकानें भी बनी हुई थी और इन्हीं दुकानों में एक तनूर वाला होटल भी था। कहने और देखने को तो एक छप्पर होटल था, लेकिन ये बात मेरे तजर्बे में कई बार आ चुकी थी कि वहाँ के खाने बड़े लजीज और खुश जायका हुआ करते थे। मैंने कांस्टेबल आसिफ को इसी होटल में भेजा, ताकीद की थी कि 20-25 मिनट के बाद खासा सेहतमंद खाना लेकर आ जाए। ये बात मेरे इल्म में थी कि मतलूब हुसैन खाने पीने का बहुत शौकीन था। कोई खाने का शायक हो और वो पिछले 12 घंटे से भूखा भी हो तो इसकी नज़र में दुनिया की सबसे अजीम नेमत खाने का उसूल ही हो सकता था। मैंने ऐसे की ज़ियाफत के लिए कांस्टेबल को मुर्गी मिसाला लाने का हुक्म दिया था। होटल अली मदद की स्पेशल डिश मुर्गी मिसाला ही थी। होटल का मालिक देसी मुर्गी में एक खास किस्म का मिसाला भरकर इसे बड़े स्पेशल तरीके से भूनता था कि खाने वाला अपनी उंगलियां चाटता बल्कि उंगलियां काटता रह जाता था। होटल अली मदद के मालिक का नाम तो उस्ताद इमदाद हुसैन था, लेकिन वो खुद को अली मदद कहलाना पसंद करता था। इसकी वजह तस्मीर ये बताता था कि इमदाद हुसैन दर हकीकत अली मदद ही है। बहरहाल साल से इसके होटल का नाम अली मदद ही मशहूर हो गया था। इमदाद हुसैन एक रिटायर्ड पहलवान था। मैं इन लम्हात में अपनी कुर्सी पर बैठा इस हसीन और जमील औरत के बारे में सोच रहा था कि लाश को सुबह मैंने पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया था। कांस्टेबल अमीन मज़कूरा अस्पताल पहुंचाकर वापस आ चुका था और इसने मुझे बताया था कि पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट कल तक या परसों सुबह मिल जाएगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो जब आती तब देख लिया जाता कि इसमें कौन सा इंकिशाफ हुआ है। अव्वल तो मैं बड़ी बेचैनी से ASI की वापसी का इंतजार कर रहा था। रात के 7 बजे, लेकिन भी महसूस होता था रात आधी से ज्यादा गुजर गई हो। वैसे भी 5 बजे के आसपास पंजाब में सूरज ग़ुरूब हो जाता था और मौसम के बायस लोग सरे शामी घरों से निकलना बंद कर देते थे। इस हिसाब से 7 बजे के वक्त को अच्छी खासी रात कहा जा सकता था। मैं इस वक्त अपने कमरे में मौजूद था और अकेला नहीं था। थोड़ी देर पहले ऐसे इमदाद हुसैन चौधरी इलाही बख्श के डेरे से वापस आ गया था और वो खाली हाथ नहीं लौटा था। मैंने इसी लम्हे मतलूब हुसैन को शिकम सेर किस्म की पेट पूजा के लिए दूसरे कमरे में भेज दिया था। कांस्टेबल आसिफ ने बड़ी अक्लमंदी का सबूत फराहम किया था और वो ये कि वो ऐसे की आमद से चंद सेकंड पहले ही होटल अली मदद से गर्मा गर्म खाने की ट्रे उठाए थाने में दाखिल हुआ था। मेरे सामने रहमदीन उर्फ रहमू गर्दन झुकाए खड़ा था और इसके पहलू में मैंने रजब अली को तैनात कर रखा था। रहमू खासा घबराया हुआ लगता था, हालांकि कुदरत ने इसे अच्छा कद और सेहत अता कर रखी थी। इनके बावजूद इन लम्हात में इसकी हालत दीदनी थी। इसकी उम्र का अंदाजा मैंने 30 और 35 साल के दरमियान लगाया था। वो एक लहीमशिम शख्स था, सांवली रंगत और चेहरे पर करख्त की। इसने अलगल की दाढ़ी भी रखी हुई थी, जैसे हफ्ता 10 दिन का शेव बड़ा हुआ हो। तहम इसकी मूछें खासी सेहतमंद और हैबत तारी करने वाली थी। इसकी आंखों में भी सुर्खी भी नजर आई थी और यही रहमू इस वक्त डरा सहमा सर झुकाए मेरे सामने खड़ा था। मैंने तफ्तीश का आगाज करते हुए करख्त लहजे में कहा, रहमू, अल्लाह ताला ने तुम्हें अच्छी खासी जान दे दी है।
फिर यूं मेरे सामने भीगी बिल्ली बने क्यों खड़े हो? वो गर्दन उठाकर बोला, थानेदार साहिब, आपके थाने के 2 बंदे मुझे डेरे से पकड़ कर ले आए हैं। मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए घबराया हुआ हूँ। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ जनाब। आप चाहे तो मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। थाना हो या कचहरी, कसमें खाने और आंसू पीने से बात नहीं बनती रहूं, मैंने इसके आंखों में देखते हुए कहा। इन 2 मुकामात पर अपनी बेगुनाही को ठोस सबूत के साथ मनवाना पड़ता है। तुम्हारे पास ऐसी कोई शय है? जनाब, मैं खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई सबूत या गवाह पेश नहीं कर सकता। वो लज्जाजत तमीज़ अंदाज में बोला, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। मैंने किसी औरत को कत्ल नहीं किया, बल्कि मैं तो इस औरत को जानता तक नहीं, पहचानता तक नहीं। ये कोई खास या अहम इत्तला नहीं है रहमू, मैंने बदसुर सख्त अंदाज में कहा। यहाँ का कोई शख्स भी मकतूला औरत को शिनाख्त नहीं कर सका। वो सबके लिए अजनबी थी। जब मुझे पता चला कि खादिम हुसैन के खेतों में किसी औरत की गर्दन कटी लाश मिली है, तो मैं फौरन वहां पहुंच गया था। वो अपनी सफाई पेश करते हुए बोला, लेकिन उस वक्त तक अब मौका की कार्रवाई मुकम्मल करके वापस आ चुके थे। वहाँ बुजुर्ग लोगों ने मुझे बताया कि मज़कूरा औरत की लाश को सरकारी अस्पताल भिजवा दिया गया है। फिर जनाब वो सांस लेने के लिए रुका, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोला, मैं वापस डेरे पर आ गया था। इसके बाद गाँव में क्या होता रहा मुझे कुछ खबर नहीं। अब आपके बंदे मुझे इस औरत के कत्ल के इल्जाम में पकड़कर थाने ले आए हैं। मुझ पर रहम करे सरकार, कत्ल की इस वारदात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने इसके बयान को चेक करने की गर्ज से कहा, अगर तुम्हारा नाम रहमदीन है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें खुली छूट दे दूंगा। मैं रहम सिर्फ उन लोगों पर करता हूँ जो बेकसूर और मासूम होते हैं, या फिर उन लोगों पर जो कानून के साथ पूरा ताउन करते हैं। सरकार, इस बात का तो आप पक्का यकीन कर ले कि मैं बेगुनाह हूँ। वो गहरी संजीदगी से बोला, और जहाँ तक कानून से ताउन करने का सवाल है तो मैं हाजिर हूँ। आप मुझे हुक्म दें, करना क्या है? इस दौरान में हवालदार रजब अली ने 2-3 बार बड़ी मैनिखेज अंदाज और सवाली नजर से मुझे देखा चुका था। इसकी इसी नजर का मतलब वाज़ेह था कि मलिक साहिब, अगर इजाजत हो 2-4 हाथ रखूं इस सुरमा की गर्दन पर। इस बात में किसी शक शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि मैंने हवालदार रजब अली को मुलजम रहमू के पहलू में इसलिए खड़ा किया था कि बवक्ते ज़रूरत वो इसकी गलत बयानी पर एक जोरदार झांपड़ रसीद कर सके। लेकिन मेरे ख्याल में भी ऐसा मौका पैदा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने रजब अली को जहमत नहीं दी थी। मैं मुलजिमों से खामखा की मारपीट और तशद्दुद का कायल नहीं हूँ, लेकिन अगर सीधी उंगली से घी ना निकल पा रहा हो तो फिर उंगली को टेढ़ा करने में एक लम्हे की तखीर बर्दाश्त नहीं करता। मैंने रहमू की आंखों में देखते हुए सवाल किया, तुम आज कितने बजे जैवकुआ पर पहुंचे थे? उस वक्त लगभग 11 बजे होंगे जी, इसने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने खुद 10 बजे वकूआ की कार्रवाई मुकम्मल कर ली थी और दीनू कुमार के इंटरव्यू के बाद कमोबेश 10:30 बजे तक मैं थाने वापस आ गया था। इस हवाले से रहमू का बयान दुरुस्त था। तब इस मामले से अभी वो से पहलू मेरे लिए इत्मीनान बख्श नहीं थे, चुनांचे मैंने रहमू की किसाई जारी रखी। सूरज उगने के फौरन बाद यानी लगभग 7 बजे पूरे फिरोजाबाद को इस बात की खबर हो चुकी थी कि खादिम हुसैन के खेतों में किसी नामालूम औरत की गर्दन कटी लाश मिली है। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, जैवकुआ तुम्हारे डेरे से तकरीबन 200 गज के फासले पर है, फिर तुम 4 घंटे देर से वहां क्यों पहुंचे थे? जनाब, जब मुझे पता चलता तो तभी जाना था ना। तो तुम ये कह रहे हो कि इस वाकये की इत्तला 11 बजे के आसपास तुम तक पहुंची थी? मैंने तंज़े लहजे में इस्तफसार किया। जी हाँ, यही बात है। इसने इस बात में गर्दन हिलाई। तो सुबह से तुम्हारी नजरों के सामने उधर खेतों में जो लोग जमा हो रहे थे वो तुम्हें दिखाई नहीं दिए थे? मैंने तेज नजर से घूरा। तुम यही समझे होगे कि वहाँ कबड्डी का कोई टूर्नामेंट हो रहा है ना? जनाब, मैं आपको समझाता हूँ, वो मिन्नत रेज़ अंदाज में बोला। एक बात अच्छी तरह अपने ज़हन में बिठा लो रहमू, मैंने इसके कुछ बोलने से पहले बड़ी सिफाकी से कहा, मुझे चक्कर देने या कोई दिलचस्प कहानी सुनाने की कोशिश नहीं करना। मेरा हवालदार बड़ी देर से अपने हाथ पांव को हरकत देने के लिए बेचैन खड़ा है। अगर मुझे तुम्हारी बातों में से कोई गलत बयानी की बू आई तो इसे इशारा करने में जरा सी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करूंगा। फिर तुम्हारी हड्डी पसली का जो भी हश्र हो फरियाद नहीं करना, क्योंकि रजब अली गिरिया जारी करने वालों को और ज्यादा ठुकाई करता है। मेरी खतरनाक और धमकी अमेज बातें सुनकर इसके चेहरे का रंग फक हो गया। जल्दी से बोला, थानेदार साहिब, आपको मेरी कसम का चाहे यकीन आए या ना आए, मगर मैं फिर भी कसम खाकर कहता हूँ कि आपसे एक लफ्ज़ का भी झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, बताओ सच क्या है? मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। तुम्हें इतनी ताखीर से जाए वारदात की तरफ जाने का ख्याल क्यों कर आया था? थानेदार जी, वो संजीदा लहजे में बताने लगा, पता नहीं क्या बात है कि आज सुबह मेरी आंख बहुत देर से खुली थी, हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। रात तुम बहुत देर से सोए होगे ना? मैंने इसके बाद मुकम्मल करने से पहले ही कह दिया, इसलिए सुबह अपने वक्त पर नहीं उठ सके ना। आप खामखा मेरी हर बात को शक की नज़र से देख रहे हैं जनाब। वो एहतजाजी अंदाज में बोला, मैंने चारों भैंसों मुश्की घोड़े को चारे वाले कमरे के अंदर बांध दिया था, और आज जब मैं काफ़ी देर से सोकर उठा तो वो घोड़ा कमरे के अंदर अपने खूंटे पर जूका तू बंधा हुआ था।
क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी गैर मामूली गहरी नींद के दौरान में कोई डेरे के अंदर दाखिल हुआ हो? मैंने टोलने वाले अंदाज में पूछा। वो मुश्किल घोड़े को आधे घंटे के लिए डेरे से निकाल ले गया हो और तुम्हें बेखबरी ही में इस घोड़े को वापस लाकर कमरे में बांध दिया हो? ऐसा कभी हुआ तो नहीं जनाब। वो बेयकीनी से मुझे देखते हुए बोला। मैं इस सिलसिले में क्या कह सकता हूँ, मुझे जो पता था मैंने आपको बता दिया है। कल शाम में डेरे पर तुम्हारे अलावा और कौन था? मैं था और बदरी था, इसने जवाब दिया। बदरी कौन? मैंने चौंक उठा। इसका नाम तो बदरुद्दीन है जी, लेकिन बचपन से वो बदरी मशहूर है, जैसे तुम रहमू मशहूर हो। जी हाँ। ये बदरी तुम्हारे डेरे पर क्या लेने आया था? मैंने तेज लहजे में पूछा। जनाब वो भी मेरे साथ डेरे पर होता है, वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला। मेरी तरफ वो भी चौधरी साहब को मुलाजिम है। पर क्या रहमू? मैंने फौरन इसकी बात काट दी। जनाब बदरी की ड्यूटी सुबह से शाम तक होती है, वजाहत करते हुए बोला, जबकि मैं रात को भी डेरे पर ही रहता हूँ। बदरी के जिम्मे किस नौयत के काम है? वो ज्यादातर जानवरों की देखभाल करता है जी, रहमू ने बताया। खसूसन चौधरी साहब ने से घोड़े की देखभाल के लिए रखा हुआ है। वो कुआ की रात जब बदरी डेरे से रुखसत हुआ तो क्या घोड़ा डेरे पर ही मौजूद था? मैंने पहले पूछे हुए सवाल को दूसरे अंदाज से कहा। इसने इस बात में जवाब देकर बताने लगा। उस रात बदरी मेरे लिए खाना लेकर आया था। इसके जाने के बाद मैं खाना खाया और मजे से सो गया। इन लम्हात में मेरा ज़हन बड़ी तेज रफ्तारी से काम कर रहा था। मैंने सनसीखेज लहजे में कहा, और फिर तुम दूसरी सुबह यानी आज सुबह खिलाफे मामूल बहुत देर तक सोए रहे थे ना? जी बिल्कुल ऐसा हुआ था, इसने जवाब दिया। क्या आज सुबह बदरी ठीक वक्त पर डेरे नहीं पहुंचा था? मैंने जानना चाहा। इसकी ड्यूटी तो सुबह से शाम तक होती है ना। अगर वो आज सुबह वक्त पर आ जाता तो फिर मेरे देर तक सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता था जनाब। रहमू ने बड़ा माकूल जवाब दिया। वो मुझे जगा देता। वो कितने बजे डेरे पहुंचा था? दोपहर के बाद। इस ताखीर का इसने क्या सबब बताया था? मैंने पूछा तो कहने लगा रात को डेरे से जाने के बाद इसे ठंड लग गई थी। रहमू ने जवाब दिया, और वो पूरी रात बुखार में फुनकता रहा। सुबह वक्त पर डेरे आने की हिम्मत नहीं हुई, इसे दोपहर को वो घर से निकला था। वो लम्हे भर को रुका, एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। इसकी तबीयत को देखते हुए मैंने इसे शाम से पहले ही घर भेज दिया था। पता नहीं इस बेचारे का अब क्या हाल होगा। इस बेचारे का हाल तो मैं तुम्हें इधर थाने में मुलाजा करवा दूंगा, मैंने सुलगते हुए लहजे में कहा। तुम सिर्फ मुझे इतना बता दोगे, तुम्हारी गिरफ्तारी पर अभी तक हवेली की तरफ से कोई हलचल क्यों नजर नहीं आई? तुम खुद चौधरी इलाही बख्श के बहुत खास मुलाजिम हो। मैं समझता हूँ मेरी गिरफ्तारी की खबर अभी हवेली तक नहीं पहुंची होगी, वो गहरी संजीदगी से बोला। जब मुझे डेरे से गिरफ्तार किया गया तो रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था और इससे बहुत पहले बदरी वहां से जा चुका था। अब सुबह जब वो डेरे पर पहुंचेगा और इसे वहां नहीं मिलूंगा तो मेरी तलाश होगी, फिर कहीं जाकर पता चलेगा कि मैं थाने में बंद हूँ। चलो मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारी गिरफ्तारी अभी तक हवेली और गाँव वालों की नजरों में नहीं आई, मैंने बड़ी रसान से कहा। क्या इस नामालूम औरत की लाश का किस्सा अभी तक हवेली के अंदर नहीं पहुंचा होगा? इस वाकई की खबर तो जरूर हवेली के अंदर पहुंची होगी जनाब, फिर उधर से कोई रद्दमल देखने में नहीं आया। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, यह कोई गैर मामूली वाक़या तो नहीं? चौधरी इलाही बख्श तो आखिर इस गांव के करता धरता है, इन्हें थाने आकर इस मामले में दिलचस्पी तो जाहिर करना चाहिए थी। आप ठीक कह रहे हैं थानेदार साहिब, मुतायदी अंदाज में बोला, लेकिन हमारे चौधरी साहब तो गाँव में नहीं है और हवेली में इनके बाद औरतें ही औरतें बाकी बची हैं। अब तो वो थाने आने से रही। चौधरी इलाही बख्श कहाँ गए? मैंने इस तरह लहजे में पूछा। वो लाहौर गए हुए हैं, रहमू ने जवाब दिया। कब से? इस वक्त से एक दिन पहले वो लाहौर रवाना हो गए थे, इसने बताया, और इनकी वापसी 3-4 दिन के बाद होगी। ओह, मैं गहरी सांस लेकर रह गया। तो इसका मतलब है ये घिनौना खेल चौधरी इलाही बख्श के ग़ियाब में खेला गया है। रहमू ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने इसे रजब अली के हवाले कर दिया। थाने से उठने से पहले मैंने 2-3 जरूरी काम किए। नंबर 1, रजब अली को सख्ती से ताकीद कर दी कि मुलजिम रहमू को एक तमाचा नहीं मारना। इस नौयत के तमाम तर अरमान निकालने के लिए इसे सुबह कोई और शिकार दे दिया जाएगा। नंबर 2, ASI मतलूब हुसैन को हदायत की कि वो अल सुबह ड्यूटी ऑफ करके सीधा बदरी के घर पहुंचे और इसे गिरफ्तार करके थाने पहुंचाएगा। मैं जब सुबह थाने पहुंचू तो बदरी को हवालात में होना चाहिए। नंबर 3, मैंने मुकामी कांस्टेबल अमीन को ही हुक्म दिया कि अपने साथ एक और कांस्टेबल को लेकर जाए, वो कुआ लेकर जाए और रात का बाकी हिस्सा चौधरी इलाही बख्श के डेरे की निगरानी में गुजारेगा, और जैसे ही कोई शख्स इस डेरे में दाखिल होने की कोशिश करे तो वो इसे फौरन गिरफ्तार कर लेंगे। फिर मैं इत्मीनान से अपने क्वार्टर में आ गया। रहमू मेरी निगाह में बेगुनाह साबित हो चुका था। सुबह इसकी बेगुनाही का कोई ना कोई अमली सबूत भी मिल जाना था। बदरी की जात मेरी नजर में मशकूक हो गई थी। सुबह ASI जब इसे थाने पहुंचा देता तो इससे पूछ गिछ कर लेता। रात डेरे से वापसी पर मैंने डेरे के बाहर किसी पुलिस वाले मौजूदगी को महसूस किया था।
मुझे यूं लगा था जैसे कोई छुपकर हमारी निगरानी कर रहा हो। ऐन मुमकिन था वो डेरे के अंदर दाखिल होने का इरादा रखता हो। अगर ऐसी बात थी तो फिर वो अमीन एंड कंपनी के हाथों से नहीं बच सकता था। मैंने अमीन को हर किस्म की कार्रवाई के इख्तियार दे दिए थे। मैंने इसे कह दिया था कि बस बंदे को फुकाना नहीं, बाकी सब चलेगा। यह भी हो सकता था कि जब मैं सुबह थाने पहुंचूं तो मुस्कुरा शख्स से मुलाकात हो जाए। मैं अगर कुछ नहीं कर सका तो इस शख्स के लिए नहीं कर सका जिसकी पुरस्कार दस्तक के बाद हंगामा खेजी का ये सिलसिला शुरू हुआ था, जो हनूज जारी था। इसका कोई नाम पता सिरा ठिकाना मेरे इल्म में नहीं था, लिहाजा मैं इस सिलसिले में मुकम्मल बेबस था। रात को जब मैं सोने लगा तो रहमू के अल्फाज ने मेरे ज़हन में खलबली मचा दी। इसने अपना मामला खुदा के सबूत करके मुझे बड़ी आजमाइश में डाल दिया था। मैंने इन लम्हात में तहे दिल से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरे हाथ से किसी बेगुनाह को सजा न दिलवाना, वरना मैं सारी जिंदगी अजाब मुसलसल का शिकार रहूंगा। कहानी अभी जारी है।